Hello students, today we are going to start our next topic in the synthetic fiber and plastic chapter. But before we starting the next topic, let us take a brief preview on the previous lecture. Already we have studied in this chapter that what are the natural fibers and what are the artificial fibers. A fiber is a thin thread of a natural or artificial substance is known as a fiber, okay? And then we have discussed about the natural fibers and different types of artificial fibers. So natural fibers we can get from the plant, we can get from the worm, we can get from the sheep. So as we already know it, the plant fiber has been given. The examples are cotton, linen, jute. These are the fibers that can that we can get from the plants. Okay, so cotton fiber is obtained from the cotton plant, linen fiber is obtained from the flax plant, and the jute fiber is obtained from the jute plant. So these are the basic examples of the plant fiber. Then we have discussed about the animal fiber, that is also the types of the natural fiber. So we can get the silk from the mulberry silkworm, and we can get the wool fiber from the sheep, okay, and we can get the yak fiber from the yak. These are the basic examples from the for the animal fibers. Then we have discussed and we have started the topic about the synthetic fibers. These are the generally man-made fibers, the different types of chemical we have to use for making the synthetic fibers. These types of chemical we have to use that can get the different types of synthetic fiber for us, okay. So for that, the different types of synthetic fibers are given as the rayon, and then we have discussed the properties of rayon and uses of the rayon. The artificial silk is the second name for the rayon. Also we can call the artificial silk, the rayon is called as the artificial silk. These are the properties of the rayon: that can easily trap sweat, lustrous in appearance, good absorbent of sweat, easily dyed and sweat and woven into the clothes. So these are the properties. Then we have discussed the uses of rayon, कि भाई कहाँ कहाँ पर ये जो है rayon यूज होता है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. Then we have started the nylon. Then we have discussed the properties of nylon, uses of nylon. बहुत सारी जगहों पर nylon का इस्तेमाल होता है. Raincoat, swim wear, sleeping bags, threads, reel threads, ropes, seat belts, making sarees, raincoats, ये सारी जगहों पर नाइलॉन का इस्तेमाल होता है. After that we have started the polyester. In different types of polyester we have discussed the terine, polyester, terylene और dacron. जो है ये सारी चीज़ें क्या है, polyester है. उसके बाद पॉलिएस्टर की भी प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि भाई वो ड्राई क्विकली हो जाता है, वो अच्छे से फटाफट से जो है, अगर वो गीला है तो फटाफट से ड्राई हो जाता है, इजी टू वॉश है, श्रिंक और स्ट्रेच नहीं होता है. तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं, ओके. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्रेलिक से. तो एक्रेलिक इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, ओके. एक्रेलिक इज ऑफन यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल. एक्रेलिक जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर में, वो क्या है, तो वो जनरली सब्स्टिट्यूट है वूल का. हम जो वूल इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल फाइबर में से हम लोगों को मिलता है, उसका ये एक लौता सब्स्टिट्यूट है. तो इसका इस्तेमाल हम लोग वूल की जगह पर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है ये सिंथेटिक फाइबर जो है एक्रेलिक. वो एक्रेलिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंट. एक्रेलिक फाइबर जो है वो जनरली क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं. यानी कि इसमें कोई जो है हम लोग अगर क्लोथिंग मटेरियल बनाते हैं तो वो क्लोथिंग मटेरियल जो है वो इकट्ठा होके उसके ऊपर फिर जो है वो झुर्रियाँ नहीं पड़ जाती है, ओके. इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली. ये वॉश करना बहुत ही ईजी है और ड्राई भी बहुत क्विकली हो जाता है, यानी कि फटाफट से हम इसको धो सकते हैं और ये जो है वो सूख भी बहुत जल्दी जाता है. तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर करता है. इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉथ्स, ऑयल्स, केमिकल्स, डिटोरिएशंस ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट. तो ये जो है वो जनरली बहुत ही रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है ऑयल्स को, केमिकल्स को. तो इसका मतलब इसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ लगेगी तो वो फटाफट से हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, ओके. और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होता है कि इसमें जो सनलाइट की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर मॉइस्चर प्रोड्यूस होती है, तो वो भी इसको सोख लेता है. तो इसकी वजह से भी हम लोग इसको पहन सकते हैं, ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक जो है वो देख लेते हैं हम लोग. जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक जो है वो क्या है कि भाई रेजिस्टेंट टू मॉथ,
हम लोगों ने अभी देखा ना कि ये रेजिस्टेंट टू मॉथ्स है, तो वो सारी की सारी हम लोग उसको किस में कंसिडर कर सकते हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर्टीज के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्रेलिक की ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। दोस्तों सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है रेजिस्टेंट टू मॉथ्स। ओके, उसके बाद जो है सॉफ्ट विथ क्रीम्स एंड रिजेंबलिंग वूल, यानी कि ये जो है एकदम वूल जैसा ही है, क्योंकि वूल का सब्सटीट्यूट है, तो वूल जैसा ही है और बहुत ही सॉफ्ट है। ओके, जैसा वूल सॉफ्ट होता है उसी तरह से ये भी बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। इज ड्यूरेबल, लाइट एंड वॉशेबल। ओके, ये क्या है, तो वॉशेबल है, इसको कभी भी धो सकते हो, ये सूख भी जल्दी जाता है और रेजिस्टेंट भी है। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंट। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, इसको जल्दी से तोड़ना इजी नहीं है, इसकी वजह से भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, उसके बाद है आल्सो अवेलेबल इन शीट्स। अगर शीट्स में अगर हम लोगों को चाहिए, शीट्स यानी कि अगर इस तरह से शीट्स में भी हम लोगों को चाहिए पूरा का पूरा वूल मटेरियल, तो ये जो है वो उसी तरह से हम लोगों को एक्रेलिक जो है वो मिल जाता है। ओके, कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, ये जो है वो हम लोग अलग अलग कलर में भी मिल सकता है। एक्रेलिक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी हम लोगों को मिल सकता है, जितनी जैसी जिसकी शीट हम लोगों को चाहिए उसी तरह से हम लोगों को ये एक्रेलिक जो है वो मिल जाता है। उसके बाद यूजेस है एक्रेलिक के, तो एक्रेलिक निटरिंग वूल इज गुड फॉर बेबी वियर्स बिकॉज दे आर सॉफ्ट, वार्म एंड वॉशेबल। तो बेबी वियर्स के लिए बहुत ही ये जो है वो हम लोग यूज करते हैं। बेबी के जो कपड़े होते हैं, छोटे छोटे बेबीज जो होते हैं उसके जो कपड़े बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्रेलिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, वार्म एंड वॉशेबल है, इस वजह से। ओके, यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फॉर ब्लैंकेट्स, कारपेट्स एट्सेट्रा। कारपेट्स और ब्लैंकेट्स बनाने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्रेलिक का, क्योंकि ठंडी के सीजन में अभी हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं ब्लैंकेट्स का, तो उसके इसमें क्या होता है, वुल होता है। तो पर इसकी अगर वुल अगर हम लोगों को नहीं मिलता है, तो इसकी जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल करके हम लोगों को ब्लैंकेट मिल सकते हैं, एक्रेलिक का इस्तेमाल करके। ओके, तो इसी वजह से एक्रेलिक जो है वो क्या है, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मटीरियल है, सिंथेटिक फाइबर है। A transparent type of acrylic is used to cover automobile lights, lenses, surgical tools, etc. तो ट्रांसपेरेंट टाइप एक्रेलिक जो है, ट्रांसपेरेंट टाइप यानी कि जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उस तरह का जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें से अगर मैं एक्रेलिक बनाऊंगा तो उसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जा सकता है, जैसे कि लाइट्स में, लेंसेज में, सर्जिकल टूल्स में एट्सेट्रा में, मोबाइल के कवर्स में। ओके, आप लोगों का ट्रांसपेरेंट मोबाइल का कवर जो होगा उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा होगा, एक्रेलिक का इस्तेमाल हो रहा होगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक यूजेस ऑफ एक्रेलिक। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग फाइबर्स की। जनरली ब्लेंडिंग फाइबर्स क्या है उसके बारे में हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर बताया गया है। टेरेलिन एंड कॉटन ब्लेंड्स नॉन एज द टेरिकॉट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। Terylene and wool blend is known as the terry wool is used as the substitute for costly woolen clothes. जनरली टेरेलिन और वूल ब्लेंड जो है वो टेरी वूल के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो है वो भी सब्सटीट्यूट है किसका, वुलन क्लोथ्स का। वुलन क्लोथ्स की जगह पर हम लोग अगर टेरेलिन और वूल का इस्तेमाल करके टेरी वूल को बनाए, तो हम लोग वुलन क्लोथ्स के रिप्लेसमेंट में टेरी वूल को यूज कर सकते हैं। टेरेलिन और वूल का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, वुलन ब्लेंड और टेरेलिन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग टेरी वूल कहते हैं। और अगर हम लोग वुलन क्लोथ्स की जगह पर टेरी वूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वुलन, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल में ले सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्लेंडिंग फाइबर्स कह सकते हैं। ब्लेंडिंग फाइबर्स यानी कि दो सिंथेटिक फाइबर्स को लेकर एक तीसरा फाइबर बनाना है हम लोगों को। ओके, पॉलिएस्टर एंड कॉटन ब्लेंड इज मोर क्रीज रेजिस्टेंट। एक्रेलिक एंड वूल ब्लेंड ट्राउजर्स आर लेस एक्सपेंसिव। तो एक्रेलिक और वूल में से अगर कोई चीज़ बनेगी तो वो लेस एक्सपेंसिव होगी, पॉलिएस्टर और कॉटन में से बनेगी तो वो क्रीज रेजिस्टेंट होगी, यानी कि वो झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी उसके ऊपर। ओके, टेरिलिन और वूल ब्लेंड में से बोला है कि मैंने कि भाई टेरी वूल बनता है, तो टेरी वूल जो है उसमें से वूलन क्लोथ्स बना सकते हो आप लोग, तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। Advantages of synthetic fiber, this is the most important point for today. Okay,
कि भाई एडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के। एक अलग अलग यूजेस तो हम लोगों ने देख ही लिए सारी चीज़ों के, रेयन के देखे, नायलॉन के देखे, एक्रेलिक के देखे, पॉलिएस्टर के देखे। ओके, उसी तरह से सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो है उसके एडवांटेज क्या है, क्या क्या हम लोगों को एडवांटेजेस मिलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। तो जनरली एक तो ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ही, ओके, एक तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग सो दैट कैन टेक अप हैवी थिंग्स इजीली। सिंथेटिक फाइबर्स जो है हम लोग बनाते हैं केमिकली प्रोसेस है, तो वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। कोई भी हैवी चीज़ को अगर उठाना है तो उससे हम लोग उठा सकते हैं या तो यूज़ कर सकते हैं इसका। रिटेन देयर ओरिजिनल शेप। जनरली सिंथेटिक फाइबर्स जो है क्या हो जाते हैं, वापस से ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाते हैं। इस वजह से ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाने की वजह से इसको वॉश करना बहुत ही ईजी है और पहनना बहुत ही ईजी है। ओके, सो सिंथेटिक फाइबर रिटेन देयर ओरिजिनल शेप सो इट इज यूज इजी टू वॉश एंड वियर। ओके, उसके बाद इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक यानी कि खिंचाव। तो ये बहुत ही क्या है, कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड आउट। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स जो मटेरियल है उसको इजीली स्ट्रेच्ड आउट भी कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा आज के टॉपिक के अंदर एक्रेलिक को देखा ना, तो एक्रेलिक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट है इस वजह से हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, क्लोथिंग मटेरियल के अंदर कर सकते हैं, बेबी के क्लोथ्स के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिलता है वो है कलर का। तो कलर जनरली क्या है, तो बहुत सारे कलर्स में हम लोग को सिंथेटिक फाइबर्स को अवेलेबल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है कॉस्ट। सो क्लोथ्स मेड बाय द सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली चीपर देन दोज मेड बाय द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से बनने वाले से ज़्यादा कम कॉस्ट में हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो सोचो कि नेचुरल फाइबर से अच्छे हुए ना हमारे सिंथेटिक फाइबर, पर इसको बनाने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल और हम लोग करते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज करती है, सो उसमें क्या होता है कि केमिकल रेडिएशन जो है फिर उसका जो है हम लोग अच्छे से क्या नहीं कर सकते, उसका लिमिटेशंस नहीं कर सकते। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को होता है। तो ये एक बेसिक रीज़न है, इसकी एक लिमिटेशन है। और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं आज के सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सो देर आर 4 डिसएडवांटेजेस टू यूज द सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट कि भाई डज नॉट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ये जो है डिसएडवांटेजेस है। ओके, डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर यानी कि ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से सोख नहीं पाता है। ये जो है सारे सिंथेटिक फाइबर्स, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसे भी सिंथेटिक फाइबर है जो मॉइस्चर को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर इतना भी नहीं कि पूरा का पूरा 100% अगर मॉइस्चर आएगा तो 100% मॉइस्चर को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से नहीं होता। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट ट्रैपिंग हीट इन अवर बॉडी। करता है हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है, 0.1% या 10% तक हम लोगों का मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, पर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसी वजह से हम लोगों को कपड़े पहनने के बाद पसीना और ये सब कुछ होता है। उसके बाद है रफ फील। सिंथेटिक फाइबर्स में गिव रफ फील मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर पायजामास, अंडरवियर एटसेट्रा। रफ फील की वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग क्या पर पैजामास बनाने के लिए नहीं कर सकते। ओके, इट इज डेंजरस टू वियर नियर फायर एज दे कैच फायर इजीली। सिंथेटिक फाइबर में ये सबसे बड़ी तकलीफ जो है ना ये है कि अगर फायर के आसपास आप लोग, मैं मेरे कपड़े पहन के फायर के आसपास जाऊंगा तो कपड़े जल जाएंगे। ओके, थोड़ा सा भी अगर फायर इसके ऊपर गिरेगा, कपड़ों के ऊपर गिरेगा, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे कपड़े जल्दी से जल जाते हैं, वहाँ पर जो है वो गड्ढा बन जाता है। ओके, तो इस वजह से एक बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि फायर इजीली कैच कर लेता है। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं और इस वजह से इसको डैमेज भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। दे कैन नॉट बी इजीली आयर्न एज दे मेल्ट वेरी इजीली। ये जो है वो जनरली क्या हो जाते हैं, आयर्न बहुत ही इजीली हो जाते हैं और मेल्ट भी बहुत ही इजीली हो जाए। इसीलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई जब भी इस्त्री करते टाइम क्या हो गया होगा, कपड़े जल गए होंगे। तो जलने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स की ये डिसएडवांटेजेस है, तो ये इजीली जल जाते हैं और मेल्ट डाउन हो जाते हैं, तो इस वजह से हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लास्टिक्स के बारे में कि भाई प्लास्टिक्स जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कौन से टाइप्स के प्लास्टिक्स होते हैं। देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दैट वी हैव टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट टॉपिक। तो टुडेज होमवर्क विल बी explain
acrylic with its properties and uses. Then question number 2, दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आज होमवर्क में. ओके, advantages and disadvantages of synthetic fiber. Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Okay, till then, bye bye everyone, and take care of yourself.